लहराएगा तिरंगा नीले आसमानों में, बढ़ेगा भारत आगे नील गगन की छाँव में। मुस्कुराहटें होंगी लबों पर लबों पर लबों पर, सफलता के गीत होंगे जुबां पर जुबां पर जुबां पर। एक बात तो है पक्की कि शून्य में है शक्ति, एक बात तो है पक्की कि शून्य से तरक्की, एक बात तो है पक्की कि शून्य में है शक्ति, एक बात तो है पक्की कि शून्य से तरक्की। To begin today's program and set the context for today's event and the Shunya campaign's progress so far, may I now invite Ms. Akshama Ghati to join us on stage. Thanks, Prabal. Very good morning to all of you, mainly all of you students. It's so heartening to see this auditorium full. I was sharing with others, my team. It is such a different vibe. As professionals, we have been doing a lot of work around sensitizing people around clean environment, clean energy, climate change, but we are talking to primarily adults. So it's such a fresh, positive vibe to be amongst you and take a lot of energy from you. So very, very excited and welcoming you all for giving us your precious time. I know school sessions have begun, so it's definitely we really value in terms of you spending some time with us to learn more about electric vehicles, about Shunya campaign. I know you may have gotten some briefer. We've shared some material as well about Shunya campaign, electric vehicles. So I just wanted to start by sharing what Shunya campaign is. Shunya campaign began in 2021 with Niti Aayog's bold vision to make sure that all delivery and taxi, which is ride hailing, trips in cities use only clean vehicles, zero tailpipe emission vehicles, and in today's technology terms, electric vehicles, as you would learn today, and I'm sure you know a little bit already about electric vehicles, give us that opportunity of those zero tailpipe emission vehicles, which can help us in cleaning our cities, our environment, the air that we breathe. Now you would be seeing already on the roads many cool electric vehicles, particularly in the delivery and in the taxi segments, and also inspiring leaders in terms of companies, delivery companies who are committing for a cleaner future, cleaner air that we can all breathe. In the early days, when Niti Aayog was thinking of Shunya campaign, they were noticing that we need to promote clean vehicles, and there is a kind of a gap between what companies or what we call as corporate efforts can really do to promote electric vehicle adoption. Because what we call them, these are early mover segment, that these companies like delivery vehicles, that deliveries you get from Amazon or Flipkart, or the taxi that you hail in terms of an Ola, Uber equivalent, how can we really make these segments electric? So they were seeing a gap in terms of, around 2019, 2020, that these segments should pick up, but there was something lacking. We were not seeing that kind of an uptake of electric vehicles in these segments. And essentially, anything new is not easy to adopt. Any new habit is not easy to adopt, as you would see at homes and schools. So any new kind of a technology to adopt is also not that easy. So they weren't very sure, like corporates, companies, how to move forward, despite a lot of support coming up in the ecosystem. And then Niti Aayog really saw that there is a room for a campaign that can really fill this information gap, this awareness gap, provide guidance to companies on how to promote electric vehicles, how to adopt electric vehicles. And slowly this campaign can also target citizens, which include all of us, in terms of caring more about our environment, especially in terms of the mobility choices that we make in terms of how we travel. That's really the genesis of Shunya campaign back in 2021, where really the hope was that Shunya campaign is a campaign that can show companies, citizens, really the benefits of electric vehicles, like reduced air pollution, lower costs. Electric vehicles, as you will hopefully learn today, are actually cheaper to operate than our typical petrol and diesel vehicles. They are
far friendly when it comes to noise. They are more convenient, and at the same time, they're also helping our economy. How they're helping our economy is by creating new investment opportunities in clean and green technologies. These investments are bringing new jobs of a future technology that is here to stay for the next 30-40 years. So it also helps in economic development. So we were hoping that Shunya campaign will fill in a lot of this gap and accelerate this movement towards adoption, production, and penetration of electric vehicles in our country. And hope was that helping understand these benefits, the campaign would also show the appreciation and support to the companies. Like they also will get to hear back from the communities, from citizens, like the benefits and their efforts are kind of recognized by the electric vehicles. So that's our journey from 2021. We are now here in few years into the campaign. I am very proud to share that the team at Niti Aayog, my team, I come from RMI, Rocky Mountain Institute, my colleague Prabal introduced. We are basically a think tank which we support research, we support action around cleaner environment, clean energy, climate change. Very proud to share that a lot has happened in the last few years. We have completed over 810 million fully electric deliveries and rides. And we hope billions of more electric deliveries and taxi rides are to follow. In 2024, we've seen adoption of almost close to 2 million electric vehicles in the country. A big share of electric two-wheelers are selling. We're seeing a lot of adoption in three-wheeler categories. You would be seeing, or perhaps you are all hailing some of those electric autos as you commute within Delhi. So Shunya really for us is a step towards a bright future where young people like you will lead India to a clean, hopeful and sustainable way of life. Even though the Shunya campaign is really focused around electric vehicles, our ambition is far beyond. We want to go beyond electric vehicles to envision holistic way that can really inspire collaboration to create communities that are really prioritizing sustainability. Our Prime Minister has given the slogan of a sustainable or a kind of an environment-friendly lifestyle, the mission life. We really want to see that we as companies, as corporates, as citizens are looking beyond also even technologies towards a really holistic way of living, which is inclusive of sustainability, efficiency principles. Today, you can see a small part of the new and exciting partnerships between companies and Niti Aayog. You will see also some of the products which we have specifically requested companies to bring, so that there is a showcase. You can see, feel, touch the technology, and hopefully carry some inspiration back home in terms of also influencing some of your buying decisions in your households around the mobility choices that you all make. I am really hoping that you leave the school today feeling inspired and knowing that the future is bright. It is not just bright because of electric vehicles or solar panels, but because students like you are learning how to take action to make the world a better, cleaner, and habitable place. There's so many ways we can all make a difference. You can learn about the planet, understand the causes of pollution, learn how to stop pollution, and explore the creative solutions that will make our world more sustainable. All of you have something bright and impressive to contribute to this planet, to this world, to this country. Ask your friends, family, teachers, how they can help you make sustainability a part of everything you do. Watch as the world embraces clean energy, cleaner technologies, a more sustainable lifestyle, and help India become the most sustainable nation in the world. This campaign, Shunya Pathshala, is really a small effort from our entire team to bring some aspect of sustainability up and close to you, give you a touch and feel of that, and we really hope that you get inspired as you go back today. Thank you so much and welcome you all. Thank you, Akshma, for that powerful welcome address. May I now invite Shri S.S. Chauhan on the stage to deliver a brief address. गुड मॉर्निंग. जरा जोर से बोलिए तो. यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर
हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, नीति आयोग और मंत्रालय, नीति आयोग के नॉलेज पार्टनर के रूप में हमारे बीच में जो ऑफिसर्स यहाँ पर है, मैडम अक्षिमा और उनकी टीम, मेरे साथ मेरे रीजनल ऑफिस में सहयोगी श्री घनश्याम पांडे साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, और केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट 2 के हमारे प्रिंसिपल श्री VK मटपाल साहब, सभी फैकल्टी मेंबर्स और हमारे प्यारे बच्चे। आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अभी 22 को ही आप इसी ऑडिटोरियम में थे एक प्रोग्राम के लिए, और वो प्रोग्राम था रोड सेफ्टी पर, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और नितिन गडकरी साहब मौजूद थे। आपने ढेर सारी चीज़ें उसमें देखी। आज का जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के लिए बेहद खास कार्यक्रम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पर हमने अपने कोर्सेज में, अपनी कैंपेन में, ट्रेनिंग्स के अलग अलग प्रोग्राम्स में देखा है कि कार्बन एमिशन के ऊपर बात होती रही है। आपको याद होगा कि पीछे हमारे एक प्रोग्राम में इसी ऑडिटोरियम में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर MOS जयंत चौधरी साहब थे, और उन्होंने कार्बन एमिशन के बारे में आप लोगों से ढेर सारी चर्चा की थी। कार्बन न्यूट्रलिटी पर, जीरो कार्बन, शून्य कार्बन, ये बहुत सी चीज़ें हैं। आज नीति आयोग के माध्यम से हमारी जो यंग जनरेशन है, आप जो सामने बैठे हैं, देश के भावी नागरिक, आप लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए पर्यावरण के प्रदूषण का जो समस्या, विशेषकर दिल्ली वालों को कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे पास है। आज के इस कार्यक्रम में आप देखेंगे, सुनेंगे कि किस प्रकार कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से उसे कम किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालयों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर के अपने कैंपसेस को ग्रीन बनाया है। हमने ढेर सारा प्लांटेशन किया है, और पिछले 2 वर्षों में हमने 50,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं अपने 46 सेंट्रल स्कूल कैंपसेस में दिल्ली में। हम लोग इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए एक मौका है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स भी आपके डिस्प्ले के लिए यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि कार्बन एमिशन को समाप्त किया जाए, रिड्यूस किया जाए, और किस तरह प्रदूषण से हम लोग इस पॉल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं। मैं अधिक ना कहते हुए, मैं नीति आयोग, स्पेशली हमारे बीच में आदरणीय शुभेंदु जे सिन्हा साहब, जो नीति आयोग के एडवाइजर है, विशेष रूप से हमारे बीच में आज उपस्थित है इस अवसर पर, और नीति आयोग के नॉलेज पार्टनर्स। ये प्रोग्राम आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है इस केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट के ऑडिटोरियम से, और इसके बाद ये दिल्ली के सभी स्कूलों में और NCR के स्कूलों में, अभी इसके बारे में हमारे जो लोग हैं वो बताएंगे आगे की कार्यक्रम क्या होगा, लेकिन सभी स्कूलों में ये होना है। और मैं अपनी ओर से नीति आयोग और उनके नॉलेज पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनकी ये शुरुआत निश्चित ही एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम के रूप में बहुत अच्छा प्रतिफल हमें इसका मिलेगा, और हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका निदान इसके माध्यम से हमें मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी आप इस पर और सुनिए। आपके जो नई बुक्स आ रही हैं, NCERT की जो बुक्स आएंगी हमारे 11th और 12th लेवल पर, उसमें भी आपको ये चीज़ें एक करिकुलम के तौर पर पढ़ने को मिलेंगी। मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, उन चीज़ों को आप एक्चुअल लाइफ के साथ कोरिलेट करें। चाहे आपका गाना बजाना ही डांस क्यों ना हो, चाहे वो साइंस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो,
लेकिन आप देखिए कि इन सब का सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पाते हैं, जो कुछ फेंकते हैं, उन सब का सीधा संबंध हमारे जीवन से है। तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसको हमें समझना है। मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और उनकी नॉलेज पार्टनर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों को इसके लिए चुना है। थैंक यू सर। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आज का लेसन लाइफ के लिए सीख के जाएं, क्योंकि भविष्य की सारी उम्मीदें आप पे टिकी हैं। आप भारत के भावी भारत के निर्माता हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir, for those energizing words and your support in making this event a success. May I now request Sudhendu sir to please present a token of gratitude to Shri S.S. Chauhan, Kendriya Vidyalaya Sangathan. Now I would like to invite Shri Sinha, Advisor Infrastructure Connectivity and Electric Mobility Niti Aayog, to join us on stage and deliver a context-setting remark about India's EV ecosystem and the mobility journey ahead. स्टेज पर उपस्थित सारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मित्र डॉक्टर हनीफ कुरैशी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ भारी उद्योग मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर हैं, हरियाणा काडर के हैं। इनका क्षेत्र थोड़े आगे से शुरू हो जाता है। मैं नीति आयोग से हूँ। नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये प्रधानमंत्री के अंदर काम करने वाली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सरकार के एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर के लोग और तमाम तरह के लोग मिलकर के सोचते हैं कि इस देश को कैसे आगे लेके चला जाए, और उस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर सरकार को, प्रधानमंत्री को उस संबंध में एक सलाह देते हैं कि किस तरह से ये प्रयास होना चाहिए। आज का विषय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। इलेक्ट्रिक वाहन आने चाहिए। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि रोड पर बहुत भीड़ है, गाड़ी पर चलना बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, पोल्यूशन हो जाता है। खासकर जाड़े में ये और भी ज़्यादा आपको महसूस होता है, कफ करते रहते हैं आप, परेशानी लगती है। क्या किया जाए कि ये जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है ये क्लीन मूवमेंट हो? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में खड़ा होगा, क्योंकि जब गाड़ी से धुआं निकलेगा, जब तरह तरह के जो है वो पार्टिकुलेट मैटर्स निकलेंगे, तो नेचुरली जो है वो पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। इस संबंध में पूरे दुनिया में विचार कहिए कि शुरू हुआ करीब 25 वर्ष पहले से ही शुरू हुआ। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, यदि दुनिया में 100 मानिए पोल्यूशन है, तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 7%। 7% कंट्रीब्यूशन हमारे पोल्यूशन का होता है, और इस 7% में 14% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट से आता है, और उस ट्रांसपोर्ट में करीब 80% जो है वो पोल्यूशन आ जाता है रोड से। यानी रोड पर चलने वाली गाड़ियों को टैकल करना, इनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया के सभी देशों ने इस पर सोचना शुरू किया, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और जो सबसे अच्छे देश थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पेट्रोल से, डीजल से, CNG से, इनसे अलग हटकर कुछ नई चीज़ की ईजाद करनी पड़ेगी। और उसके बाद बैटरी टेक्नोलॉजी आया कि बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियों को चलाया जाए, और धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई ऐसे देश, उदाहरण देता हूँ नॉर्वे का, जो 1995 में उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी पेट्रोल पर, डीजल पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये रास्ता तो सही नहीं है,
यदि पेट्रोल और डीजल पर ही गाड़ियां चलेंगी तो हमारे देश में पोल्यूशन होगा, हमारे रोड साफ सुथरे नहीं रहेंगे, हमारे जो है बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। उस तरफ जो है चिंता होने लगी और 1995 में उन्होंने तय किया कि अब इसको हटा करके अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। और सोचिए वह देश, छोटा सा देश, एक समय में जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था थी, कितना दिक्कत हुआ होगा इस चीज़ को, यह निर्णय लेना कितना कठिन रहा होगा। और पिछले 30 वर्षों में अब करीब 80% उनकी गाड़ियां जो हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक पर चलती हैं। और जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करने की बात थी। शून्य कैंपेन, जैसा अक्षमा मैम ने बताया, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। बहुत थोड़े से लोग हम लोग थे जिन हम लोगों ने शुरू किया था इसको। यहीं पर दिल्ली के एक होटल में इसका लॉन्च हुआ था और बड़े कम इंडस्ट्री प्लेयर्स थे। आज की डेट में 225 इंडस्ट्री पार्टनर्स इसमें से जुड़े हुए हैं। और पिछले इन 4 वर्षों में, 21 सितंबर से लेके 25, करीब 3.5-4 वर्षों में हम लोगों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का, 900 से ऊपर करोड़ रुपए का जो गैसोलीन बेस्ड यानी फ्यूल, जिसको आप कहें पेट्रोल डीजल, इनकी बचत की। यानी इलेक्ट्रिक के चलते ये इतने नहीं खरीदे गए, इतना का इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। और इसमें करीब आप डिलीवरीज देखें, डिलीवरी का मतलब हो गया जैसे आपके यहाँ अमेज़ॉन आता है, IKEA आता है, फ्लिपकार्ट आता है, आप कुछ खाना जो है कभी स्विगी से मंगा लेते हैं, कभी जोमेटो से मंगा लेते हैं। ये सब जो इस तरह के लोग हैं, ये जिन गाड़ियों पर आए वो गाड़ी क्लीन होना चाहिए, वह गाड़ी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होना चाहिए। इस पर जो है बल दिया जाने लगा। और करीब जैसा बताया, इस 3.5 वर्षों में करीब 80 करोड़ डिलीवरी का मतलब हो गया, यदि एक सामान आपके पास लाया तो उसको माना गया एक डिलीवरी, यदि वही कोई दूसरे यहाँ ले गया तो उसको दूसरा डिलीवरी। तो इस तरह से 80 करोड़ डिलीवरीज, आप उबर में बैठे या ओला में बैठे, वो एक राइड हीलिंग माना गया। तो कुल मिला के 80 करोड़ जो है बहुत बड़ा संख्या है। इतना जो है वो हम लोगों ने क्लीन गाड़ियों पर किया है। प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हों, 100% धीरे धीरे डिलीवरीज जो हैं उनको क्लीन पर होना चाहिए। आपकी प्रतिभागिता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इस प्रकार से है कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ गाड़ियां आपको दिखलाएं। आप बाहर जब अभी इस प्रोग्राम के बाद आपको उन गाड़ियों का एक्सपोजर मिलेगा, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कार है, आप उसको देखेंगे कि उनकी क्या उनका टेक्नोलॉजी है। आप फिर इंटरनेट पर जाकर के उनको समझ सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है, जैसे गाड़ी में इंजन होता है और जो पुरानी गाड़ी, मतलब जो गैस वाली गाड़ी होती है, जो पेट्रोल की गाड़ी होती है, उसमें 2000 कंपोनेंट्स होते हैं। वो आपका जो लीफलेट दिया गया उसमें लिखा हुआ है। और इसमें केवल 20 कंपोनेंट होता है, 20 ही सामान होता है। तो बैटरी का दाम महंगा है। बैटरी अपने देश में नहीं बनता, सेल अपने देश में नहीं बनता। अब हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में डॉक्टर हनीफ कुरैशी की बहुत बड़ी प्रतिभागिता है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कैसे इस चीज़ को देश में बनाया जाए। आप जल्दी ही देखेंगे, जल्दी का मतलब इसी वर्ष देखेंगे कि अब एडवांस केमिस्ट्री सेल अपने देश में पहली बार बनना शुरू होगा। अभी तक ये दूसरे देश से हमको मंगाना पड़ता था, उसमें ये पैसे लगते थे, तो उसके चलते उस चीज़ का दाम बढ़ता जाता था। आपकी प्रतिभागिता इस प्रकार होगी कि कल को जब आप थोड़े से बड़े होंगे, IITs में जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे, NITs में जाएंगे तो सोचेंगे कि क्या किया जाए कि इस बैटरी का दाम धीरे धीरे कम होना चाहिए। जिस चीज़ से बैटरी बनता है, जिस चीज़ से सेल बनता है, कैसे उस चीज़ को, उस मटेरियल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे कि अपने देश के मटेरियल उसमें यूज़ किए जाएं। जरूरी नहीं हो कि उसको इंपोर्ट किया जाए। व्हीकल का दाम कम करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे देश में फैलाना, किस प्रकार से उसमें कई तरह के काम किए जा सकते हैं, तो ये आपकी जनरेशन को करना है। दुनिया ने इसी तरह से किया है इसको। ऐसा नहीं कि कोई हम नया तरीका अपना रहे हैं। दुनिया के जो जितने आप सुनते हैं ना कि चाइना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से ट्रेन करते हैं कि आप इस तरह से R&D इकोसिस्टम पर काम कीजिए, नई चीज़ें आप खोज करके बताइए और तब वो आगे बढ़ते हैं। तो जब आप भी
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए खरीदेंगे, अपने परिवार के लिए लेंगे और उसके टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे ये पूरा इकोसिस्टम बढ़ता चला जाएगा और जल्दी ही हमारा जो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक फ्लो है, पूरा का पूरा जो हमारा रोड सेक्टर का जो है ये 100% जो है वो इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा और इस प्रकार से हम जो है क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ जाएंगे। बाद में जब हाइड्रोजन की कल्पना देश में आसानी से हो जाएगी तो हाइड्रोजन की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन इस वक्त जो टेक्नोलॉजी, एक प्रूवन टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी को हम आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में सेंसिटाइज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए दुनिया इस तरह से आगे बढ़ रही है। आप इंटरनेट पर जाकर के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि करीब 20-25 देश इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आपको भी उसमें आगे बढ़ना है और इस बात को इंश्योर करना है कि अपना देश दुनिया में नंबर 1 पर रहना चाहिए और उसमें केंद्रीय विद्यालय का रोल जो है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर दैट इंस्पायरिंग एड्रेस। अपना देश बिल्कुल नंबर 1 होना चाहिए और केंद्रीय विद्यालय से शुरू होना चाहिए। May I now request Akshama to present a token of gratitude to Sudhendu sir. Thank you, sir. Next, I invite Dr. Hanif Qureshi, Additional Secretary MHI, to share his perspective on India's EV revolution and the exciting opportunities that lie ahead for the youth that is present here. रिस्पेक्टेड सुधेंदु सिन्हा सर और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथिगण, फैकल्टी एंड स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये हमें प्रश्न का उत्तर देना है। और आपके जो मुझे अभी फोल्डर यहाँ पे दिया गया उसमें लिखा है कि इस कार्यक्रम के 2 मकसद हैं। एक मकसद है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडवोकेट्स बने और जब भी कोई बात आती है तो बताएं कि ये अच्छी चीज़ है, सही चीज़ है। दूसरा ये कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर क्या हो सकती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि आप एडवोकेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तब बनेंगे जब आपको पता हो कि ये अच्छी चीज़ है। अब इसमें बहुत सारे मिथ हैं, तो पहले मैं आपको 1-2 मिथ्स के बारे में बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मिथ्स हैं। तो एक मिथ तो ये है कि मतलब पहले मुश्किल वाले मिथ से शुरू करता हूँ। मुश्किल मिथ ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली से चलती है और बिजली हमारे देश में ज़्यादातर कोयले से बनती है। तो फिर जब कोयला जला के ही बिजली बनी और उसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चली तो फिर तो हम कार्बन एमिशन ही कर रहे हैं, फिर तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ, नॉट ओनली अमंगस्ट यंगस्टर्स लाइक यू बट ऑल्सो अमंगस्ट ओल्डीज लाइक द वंस हु आर सिटिंग ऑन द स्टेज। इन लोगों में भी बहुत से नए मिथ्स हैं। तो इसका जवाब क्या है कि इंडिया में अगर आप एक है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी CEA, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है, वो हर साल ये बताती है कि कितनी बिजली किस सोर्स से बनी, ये वो डेटा पब्लिश करती है। तो 24-25 साल का अगर हम उसका डेटा देखें तो उसमें लिखा है कि 78.5% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट हुई है और 21.5% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हुई है, जिसमें सोलर, विंड, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल और सब मुख्य रूप से सोलर और हाइडल ही है, बाकी सब बहुत छोटी हैं। तो अब प्रश्न हुआ कि ये कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफिशिएंट हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए जैसे मैडम अक्षिमा यहाँ बैठी हैं RMI से, ये हमारे थिंक टैंक्स हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे निकाला जाएगा कार्बन कंट्रीब्यूशन। तो ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसमें ज़्यादा लिथियम होता है, कॉपर, निकल, मैंगनीज, एल्यूमिनियम और बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो वो मेटल्स की माइनिंग में
बहुत एनर्जी लगती है, उसमें भी बिजली खर्च होती है। तो माइनिंग में कितनी एनर्जी लगी, कितने कार्बन उत्सर्जन हुआ, तो उसको कैलकुलेट किया गया। उसके बाद ये देखा गया कि जब, क्योंकि टेल पाइप एमिशन तो ज़ीरो है, उसके बाद जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कार्बन निकलता है, और फिर हमारे थर्मल प्लांट्स की क्या एफिशिएंसी है, वो सब कैलकुलेट किया। तो देखा कि करीब 20 to 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेस कार्बन देती हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। ये रिजल्ट इन सभी, बहुत सारी स्टडीज हुई, दैट इज द एवरेज, सम से 18, सम से 20, सम से 22, 20% के आसपास ये निकलता है। और ये डेटा 21-22 के ग्रिड मिक्स के हिसाब से, अभी तो हम 78.5 कोल से बना रहे हैं, उससे पहले हम 80s 84-85 में कोल में बनाते थे। तो अभी हमें करीब 20 से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने से कार्बन कम निकलता है। तो ये फैक्ट्स आप लोग तो बहुत गूगल को इस्तेमाल करते होंगे, तो आप उसको, ये स्टडीज़ को ज़रा चेक करिएगा कि इसमें क्या डेटा निकलता है, एंड यू विल फाइंड इट। इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन आपको मिल जाएगा। दूसरा, अब ये बात हुई कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने एफिशिएंट क्यों हैं। तो अगर आप, जैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो मुझे बिजली के बारे में थोड़ा ज्ञान है, लेकिन अब ज्ञान के लिए बीटेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आपके पास काफ़ी इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं और बुक्स हैं, जिस तरह कमिश्नर साहब बता रहे थे, तो शायद आपकी बुक्स में भी बातें आएंगी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बेसिकली हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज़ अबाउट 95% प्लस एफिशिएंट। और जो आइस इंजन है, जिसे हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, यानी कि जो ये पेट्रोल और डीजल के इंजन होते हैं, इनकी एफिशिएंसी करीब 17 से 18% होती है। जैसे हम पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो 17-18% ही मोशन में कन्वर्ट होता है, बाकी हीट, साउंड और मैकेनिकल वाइब्रेशंस, उन सब एनर्जीज में निकल जाता है। तो पेट्रोल हम बड़ा इनएफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मच क्लीनर वे। अब हमने शून्य की बात की, सुधेंदु सिन्हा सर ने बताया कि शून्य कैंपेन एक क्लीनलीनेस की कैंपेन है, क्लीन एनवायरनमेंट की कैंपेन है। और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो करीब 18% पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से होता है। बहुत सारा पोल्यूशन हमारे थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से होता है, बहुत सारा हमारे रोड डस्ट की वजह से होता है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन आता है, जो चिमनी से आपने धुआं निकलता हुआ देखा है, बहुत सारा स्टबल बर्निंग से आता है। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचामृत, जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, उसको देखें तो उसमें यह है कि हमें ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी एनर्जी बनानी है, यानी कि सोलर, विंड, इसको हमें ज़्यादा बढ़ाना है, अपने कार्बन की इंटेंसिटी को कम करना है। लेकिन ये सब, इसका पर्पस क्या है, इसका हम क्यों ये सब कम पोल्यूशन की दिशा में जा रहे हैं। तो अब ये है कि एक ही पृथ्वी, ये एक ही ग्रह है जिस पे हम सभी लोग रहते हैं और हज़ारों लाखों सालों से हम रह रहे हैं। आप ये इमेजिन करें कि आज से 50 साल बाद जैसी दिल्ली होगी या जैसा भारत होगा, वो कैसा होगा। अगर उसमें इसी तरह पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चलती रही, इसी तरह कोयले से बिजली बनती रही, तो आप लोग यहाँ बैठे होंगे और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सामने बैठी होगी और वो सब मास्क लगा के बैठी होगी। तो वो कहेंगे ये कैसे हमारे लोग थे जिन्होंने ये हाल पृथ्वी का कर दिया कि बॉटल्स लेके सब ऑक्सीजन के घूम रहे हैं। बच्चों में झगड़ा हो रहा है कि भाई मुझे बॉटल दे दो, मुझे बॉटल दे दो। तो क्या हम ऐसे दृश्य की कल्पना करना चाहते हैं, या हम ऐसे दृश्य की कल्पना करना चाहते हैं कि रात में हमें सभी तारे दिखें और हम एकदम क्लीन एटमॉस्फेयर में हो। जो लोग विदेश से आते हैं, अगर आपके घर परिवार में हो, तो जब वो बाहर से लैंड करते हैं तो वो देखते हैं कि कितना एक धुएं के हम अंबार में लैंड कर रहे हैं।
तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू लीव अ क्लीनर प्लैनेट दैन वी हैव इनहेरिटेड। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सडनली बहुत ही क्लीन ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्लीन एनर्जी भी चाहिए। जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, हाइड्रोजन व्हीकल्स अवेलेबल भी हैं, हाइड्रोजन व्हीकल दुनिया में कई जगह चल रही है, हाइड्रोजन पंप्स भी हैं, जैसे सीएनजी के पंप्स है ना हमारे इंडिया में, आपने लाइनें लगी हुई देखी हैं, इस तरह से यूएस में और यूरोप में हाइड्रोजन के पंप्स हैं, तो वो गाड़ियों में हाइड्रोजन भर के चलती हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ता है, उसके सिलेंडर्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक्सप्लोजन्स, तो इससे वो अभी थोड़ी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की ये बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप 1890 में न्यूयॉर्क में होते तो आप ये पाते कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ चल रही हैं। At the turn of the century in the 1900s, the sale of electric vehicles in US was higher than any other category of vehicles. लेकिन फिर क्या हुआ कि 1900s में there was a discovery of new oil and new technologies and cheaper oil was available. So slowly the proportion of electric vehicles decreased and the proportion of ICE vehicles increased. And by 1910-15, पेट्रोल डीजल हैड ऑलमोस्ट टेकन ओवर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की प्रॉब्लम्स थी और उनकी रेंज की प्रॉब्लम थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाती थी, फिर चार्ज करना पड़ता था। तो लेकिन फिर 80s में दोबारा से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट रिवाइव हुआ और धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब हम इंडिया की बात करें तो हम कार की अगर बात करें तो पिछले साल इंडिया में करीब 45 लाख कार बिकी हैं, जो लोगों ने खरीदी हैं, 45 lakhs। उसमें से करीब 2% कार्स इलेक्ट्रिक कार्स थी, कि 98% कार अभी भी हमारी पेट्रोल बिक रही है। अगर हम यूएस का फिगर देखें तो वहाँ जितनी कार बनती हैं उसमें से करीब 10% कार इलेक्ट्रिक बिकती है। अगर हम जर्मनी में देखें तो करीब 24% कार्स इलेक्ट्रिक बिकती हैं। बहुत से कंट्री है जहाँ 80-90% बिकती हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इन सब में 80-90% बिकती है, बट दोज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज। इफ यू टॉक अबाउट बिग कंट्रीज लाइक जर्मनी और यूके तो 22-24%। चाइना में 36% इलेक्ट्रिक कार्स बिकती हैं, विच मीन्स इवन इन चाइना 64% कार्स आर पेट्रोल कार्स। इट्स नॉट कि वहाँ पे 100% हो गया है। सो दीज आर कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें और फिर हम इंडिया को देखें तो हम 2% पे हैं, कोई 10 पे है, कोई 24 पे है, कोई 36 पे है। सो जो ये लोग डाउट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी या नहीं आएगी, ये तो फोरगोन कंक्लूजन है, वो तो आनी ही है। इंडिया हैज़ टू डेवलप फ्रॉम 2%, वी हैव टू मूव टू 10, 20, 30, वी हैव टू गो। ओनली क्वेश्चन इज हाउ फास्ट, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। जैसे नीति आयोग ने एस्टिमेट किया कि 2030 में 10% कार हमारी इलेक्ट्रिक बिकेगी, पर कुड बी कि 12% हो जाए, कुड बी कि 8% हो जाए। अब ये टेक्नोलॉजी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। अगर है तो वो आपके पास है। अब वो आपके पास उत्तर क्यों है? वो इसलिए है कि दुनिया में अगर आप देखें तो सिर्फ 9-10 देश ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। बाकी 10-12 देश ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक कार असेंबल करते हैं, और बाकी सब ऐसे हैं देश हैं जो कार इंपोर्ट करते हैं। वो अपने यहाँ कोई कार नहीं बनाते, क्योंकि कार बनाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट ए ईजी टेक्नोलॉजी। इधर जापान, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस, जर्मनी, यूके, इटली और कुछ हद तक फ्रांस और 1-2 और कंट्रीज, यही लोग कार बना सकते हैं। बाकी थाईलैंड, जितने कंट्रीज हैं, ऑल आर असेंबलिंग। इंडिया इज द ओनली कंट्री नाउ
on the verge of entering this select group of countries which can manufacture electric cars indigenously. So making electric cars and selling, ये जो मैं नंबर बता रहा था 2%, 10%, ये तो this is one thing. But another thing is whether we want to make it in India or we want to just import it from other countries. प्रधानमंत्री जी ने एक मेक इन इंडिया का नारा दिया है कि हम इंडिया की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडिया के अंदर चीज़ों को बनाएं। उससे क्या होगा? इंडिया में क्यों बनाए भाई? हम विदेश से भी तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से बनाने में ये फ़ायदा है कि एक तो हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, दूसरे हमें वो चीपर मिलेगी, तीसरे हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। कल को हमारे संबंध खराब हो, हमारे इंपोर्ट रोक दें। आजकल आप टैरिफ वॉर कितनी चल रही है, आप देख रहे हैं। वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। और अब एक नई चीज़ आ गई है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम इंडिया में बनाएं न केवल भारत के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए। और फिर इसका उत्तर आपके पास क्यों है? इसका उत्तर आपके पास इसलिए है क्योंकि आप ही वो टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ओल्डीज नहीं बना सकते। ये तो आइस के लोग हैं, ये बातें कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, लेकिन ये बना नहीं सकते। लेकिन उसके लिए एक बड़ा कठिन रास्ता आपके सामने है। अभी हमें टेक्नोलॉजी यूजर बनना है कि टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटर बनना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप हाथ खड़ा करेंगे कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? यस। तो ऑलमोस्ट 100% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप बनाई किसने? ये कहाँ बनी? ये तो कहीं कैलिफोर्निया में बनी। फिर आप गूगल कितने यूज करते हैं? तो सभी लोग गूगल यूज करते हैं, ये भी अमेरिका में बनी। फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? ये भी अमेरिका में बनी। सो एट प्रेजेंट वी आर यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्रिएट कौन करेगा? तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, स्मार्ट मशीन्स एंड डम पीपल, स्मार्ट स्क्रीन्स एंड डम पीपल। What does that mean? Now that means that people who are using the screen, they don't have to do anything. All mental thing is done by the screen. So these technologies are like that. Now if you have to run a school, the school administrators are here, they want to see what is the attendance of teachers, attendance of students, who has paid fee, who has come, who has not come, who is failed, who is passed, what marks have students obtained. This is a huge system. If you come to think of it, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। और इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है ERP। तो वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट टू रन इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू जस्ट हैव टू एंटर, इट विल डू द कैलकुलेशंस एंड गिव यू द रिजल्ट्स। यूजिंग इज वेरी गुड, but to get ahead in the community of nations, you need to create such technologies. That is the problem. And India is in a unique position now. We are making lot of equipment which go into manufacturing of electric vehicles. But some things we don't make. जैसे हम permanent magnet नहीं बना पाते, जैसे हम semiconductors इंडिया में नहीं बना पाते, जैसे सिन्हा साहब ने बताया हम advanced chemistry cells नहीं बना पाते। सेल्स हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर पैक लगा के बैटरी तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो उसका एसेंशियल कंपोनेंट है सेल्स, वो हम नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारी एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इतनी जॉब्स मैं आपको बता दूं बच्चों आने वाली हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और न्यू एनर्जी के अंदर आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट कि टेक्नोलॉजी के लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत कम लोग काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो उस टेक्नोलॉजी को ईजी टू यूज़ बना के लोगों के सामने लेके जाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिससे कि वो टेक्नोलॉजी ईजिली एक्सप्लेन हो सकती है। आपने अभी शून्य का वीडियो देखा, कितना ईजिली एक्सप्लेन किया कि जीरो कॉन्सेप्ट से चल के और आपको किस तरह से हमें फ़ायदा होगा। तो वो एक्सप्लेन करना भी, अभी एक मैं आपको, मेरा शायद भाषण लंबा हो गया,
मैं इसको लास्ट एग्जांपल आपको एक देता हूँ। बसेस इंडिया में करीब 22 लाख बस हैं जो इंडिया में चलती हैं, उसमें से 1.5 लाख बस गवर्नमेंट के पास है। तो हमारा एक प्रोग्राम है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या को बढ़ाएं। इंडिया में अब करीब 12,000 बस इलेक्ट्रिक चल रही है और हमारा टारगेट है कि ये 50,000 बस हो जाएं। तो हम डिफरेंट स्टेट से बात करते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक बस ले लीजिए, और इलेक्ट्रिक बस चलाना सस्ता है और पोल्यूशन फ्री भी है, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर। अब सस्ता भी है और क्लीन भी है तो आप लेंगे ही इलेक्ट्रिक बस। लेकिन वही मिथ्स जो मैंने आपको बताई, तो वो मिथ आ जाती हैं आड़े, तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि भाई डीजल बस 100 रुपये, 101, 102 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, और इलेक्ट्रिक बस जो है वो 50-55 रुपये किलोमीटर में चल जाती है, वो रादर सस्ती है, उसके एमिशंस बड़े कम हैं, और ड्राइवर को चलाने में बड़ी सुविधा है क्योंकि बस में इतनी वाइब्रेशन नहीं है, इतना बड़ा डीजल इंजन रखा हुआ है, तो वो ड्राइवर का ईज, एफिशिएंसी, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आ गए। अब इस चीज़ को बताने के लिए, अब हमें तो इतना अच्छा बताना नहीं आता, लेकिन जो लोग इस तरह के क्रिएटिव्स बना सकते हैं, जो वीडियोस बना सकते हैं या मैनुअल्स बना सकते हैं, तो कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो IEC की बहुत आवश्यकता है इसके अंदर। डेटा एनालिस्ट्स की बहुत आवश्यकता है। इतना डेटा प्रोड्यूस होता है, उस सबको कौन एनालाइज करेगा? सब डेटा रखा हुआ है हमारे पास, किसी को रिग्रेशन नहीं आता, किसी को प्रेडिक्शन नहीं आती, किसी को मॉडलिंग नहीं आती, कैसे उसे एनालाइज करेंगे? उसके लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, डेटा एनालिसिस, it is a skill which anybody can use. So there are a large number of jobs which will be created in this electric vehicles and clean energy. So that is a world of an opportunity which awaits you. But opportunity knocks only on the door of the people who are looking for it, who are ready. If you are sleeping, then nobody can, nobody is coming to your homes to give you something. You have to reach out. थोड़ा अवेयर आपको होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये सब जो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, these are all tools. I am not saying you should not use them. You should use them, but you use them with a purpose. And little progress a day, produces big results. तो ये एक दिन नहीं है कि आपने बता दिया कि साहब मैं परमानेंट मैग्नेट बना सकता हूँ, आज वो दिन आ गया। वो दिन तो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको छोटा कई साल उसको पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो विद द कॉन्फिडेंट फेसेस आई सी बिफोर मी, आई एम श्योर दैट इंडिया इज रेडी टू सीज द अपॉर्चुनिटी which lies before us. And the dream of our Prime Minister that we have to be a developed nation by 2047 is indeed an achievable dream, provided all of us work, and not only work, we work together. And I must thank the Kendriya Vidyalaya Sangathan for initiating such a good program. And I'm sure that with Niti Aayog and with the participation of all concerned, we will be well on our way to reducing pollution and leaving the earth in a better form than we found it. Thank you very much. Thank you, Dr. Qureshi, for beautifully painting that picture of a global landscape of EVs around the world and how India can become a #1 player with the support of these students from Kendriya Vidyalayas. May I now request Sinha sir to present a token of gratitude to Dr. Qureshi, please. May I request Sinha sir to present a token of appreciation to Shri Ghanshyam Pandey, Assistant Commissioner, KV Sangathan, for making this event a possibility and a success. May I now request sir to please present a token of gratitude to Shri Vinod Kumar Matpal, Principal, KV No. 2, Delhi Cantonment. Thank you to our distinguished guests. May I request you to take a seat in the audience as we move on to the next part of the event. May I now request on stage representatives from the industry who will be participating in an engaging panel discussion. First, I'd like to invite Ms. Neha Jain,
Head EV and Innovation Ecosystem, JSW MG Motors India. Next, I would like to invite Mr. Rohit Gattani, Vice President, Growth and Vehicle Financing, Euler Motors. Next, I would like to invite from Browns Infinity, Mr. Sridhar Hiremath, Lead Sales and Marketing. Then, I would like to request Mr. Vivek Dhawan, Chief Strategy Officer, Omega Cycle Mobility, to join us on stage. Welcome, dear panelists. Thank you, Prabal. Good morning, students. Respected principals, teachers, eminent guests, thank you so much for the support so far. And आप सबका शून्य पाठशाला में स्वागत है. हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है, एक छोटी सी टॉक ऑर्गेनाइज की है. ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये OEMs हैं, ये व्हीकल्स बनाते हैं. 4 बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की आज हमारे साथ जुड़ी हैं और बाहर इससे ज़्यादा 7 OEMs ने अपने व्हीकल्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिए हैं, जिन्हें आप जाके बाद में देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं. थैंकफुली मेरा काम बहुत आसान कर दिया है हनीफ कुरैशी सर ने, सुधेंदु सिन्हा सर ने, जिन्होंने बहुत कुछ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पहले ही बता दिया है. सो आई गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम. And we are very thankful to the guests that have joined us on the stage. And what I intended to do was ask them a few questions, but broadly open the floor, ताकि आप सब लोग उनसे और सवाल पूछ पाएँ. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जुड़ना चाहते हैं, पहली चीज़ तो आप उसे खरीद सकते हैं या और लोगों को बता सकते हैं खरीदने के लिए शायद अभी समय है, पर अपने घर में बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में. और दूसरा चीज़, आप सब लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं इस फील्ड में, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और जान सकते हैं. तो मेरा सवाल हम सब यहाँ बैठे सारे स्पीकर से है. पहला सवाल है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्नी में कैसे जुड़े, आपको क्या लगता है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन द EV इंडस्ट्री. सो वी कैन गो वन बाय वन. आई विल स्टार्ट विद नेहा एंड सो ऑन. So may I request you to kindly keep it brief, because I do want to open for the floor for questions from students. Sure. Good afternoon everyone and thank you चेतना इस फोरम के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ. सो एज अ रोल मैं JSW MG मोटर इंडिया, जो कि एक 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एज अ हेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जॉब करती हूँ. सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 6 years बैक, जब हमने काम शुरू किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ, बिकॉज प्रोडक्ट एक चीज़ होती है, बट उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है. सो अगर आप कार की बात करते हैं तो कार चार्ज कैसे होगी, साथ में बैटरी है, नए कंपोनेंट्स हैं, नए सर्विस है, नए तरह की स्किल्स चाहिए. तो वो सारी चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप में अकेले सक्सेसफुल नहीं होता है. तो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल होने के लिए एक इकोसिस्टम को डेवलप होना ज़रूरी है. सो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी. और जैसा कि डॉक्टर कुरैशी ने बताया कि हमने स्टार्ट किया था 6 साल पहले, बट अब हर साल हम देखते आ रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर इंडस्ट्री में ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है. तो जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल और एक पॉजिटिव चेंज है. इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या इंस्पायर किया, तो आई थिंक जैसा कि डिग्निटरीज़ ने और सब ने पहले भी बोला, आई थिंक EVs का टाइम अभी है, EVs फ्यूचर नहीं है. बहुत सारे रीज़न्स हैं. एनवायरनमेंट जो कि सबसे प्राइमरी रीज़न है. हम सबको पता है कि क्यों हमें क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, और आई थिंक EVs में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए. दूसरा, एनर्जी आत्मनिर्भरता, क्योंकि जब हम आइस और बाकी टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा है. तो भारत एज अ देश, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, जितनी एनर्जी हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर तरीके से क्रिएट करेंगे, चाहे वो रिन्यूएबल्स के थ्रू हो और अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, उतनी हमारी निर्भरता ऑयल एक्सपोर्ट्स पे कम होगी, ऑयल इंपोर्ट्स पे कम होगी.
और जो पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और आई थिंक ये एनर्जी आत्मनिर्भरता, 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन था इस इंडस्ट्री में आके काम करने का। थैंक यू नेहा। आई थिंक EVs फॉर बेटर फ्यूचर एंड बेटर प्लैनेट। मेरा अगला सवाल रोहित जी से है। आप Hi everyone, hi students. Yes. First is definitely what inspired you to join EV industry. Second, I also want you to reflect a little bit on career opportunities for students in the sector. What sort of subjects should they be taking in order to pursue a career in this sector? I think what inspired me, I would say, is creating a positive impact, firstly for your community, your nation, and your country, and the world itself. As the dignitaries rightly pointed out, how are we making this world a better place to live? And secondly, it's a challenging thing as the ecosystem is being set up, as Neha is saying. There are a lot of challenges which needs to be solved at all the levels, whether it be R&D, whether it be, say, distribution of the product or marketing of the product. So it is interesting field. Over next 10-15 years, it will continue to remain a very interesting field where there's so many challenges and things to be solved. From career opportunity wise, I think everyone can contribute. It's not that only science or R&D student can only contribute. I myself, obviously I come from engineering background, but I have say worked in finance industry for last 8-10 years. And right now what I am solving is the vehicles finally get financed. So how to make that financing possible for the end consumers basically. तो हर एक जन के पास एक अपॉर्चुनिटी है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, लोगों को कैसे समझाना, जैसे अभी भी लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन है कि एज हनीफ सर राइटली पॉइंटेड आउट कि ईवी शायद ग्रिड पे ज़्यादा गंदी है या फिर कॉस्टलियर है, तो लोगों को समझाना ये भी एक मार्केटिंग वाइज अपॉर्चुनिटी है। So whatever field you choose, there is an opportunity to create an impact in EV. Thank you, Rohit. मेरा अगला सवाल श्रीधर जी से है। सिमिलरली सर, आपकी EV जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और अभी से तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं? Great. Thank you, everyone. Good morning to all. So, I am Sridhar from Bounce Infinity. So, at Bounce Infinity, what we do is we build electric scooters which are easy to use and easy to adapt. मतलब, what inspired me to join electric vehicle company was before this, I was in a company where we used to work on fuel scooters and diesel cars, right? So then I wanted to create an impact which can be a long term. So EV is not a trend. In fact, it's become a movement now where people have to think on the greener future, energy efficient, and also, of course, pocket friendly. So for us, the market is wide open now for EV as an opportunity. And like I would like to divide career in 2 ways. One is front end and back end, right? So at the back end, there is again engineering, there is design, there is R&D which comes in, and there is manufacturing and supply chain. In the front end, we have sales, marketing, policy makers like we see from the Niti Aayog who do the lot of research and make policies for the industry to grow. And also there are after sales which comes in, which is very important in this market to grow it further. थैंक यू। अगला सवाल विवेक जी से है। सिमिलरली सर, आपकी EV जर्नी कैसे शुरू हुई और बच्चे किस तरीके के सब्जेक्ट्स अभी पढ़ सकते हैं जिससे उनकी तैयारी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाने की? थैंक यू मैम। आई एम विवेक धवन रिप्रेजेंटिंग ओमेगा सीकी मोबिलिटी। हम लोग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाते हैं, आप लोग सब उनके ऊपर सफ़र भी करते हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो हाई स्पीड 3 व्हीलर होते हैं जिनको हम L5 कैटेगरी बोलते हैं। हमें 3 व्हीलर बनाने की इंस्पिरेशन इस करके मिली बिकॉज हम ये देखते थे भी दिल्ली जैसे शहरों में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें बहुत पोल्यूशन है, तो क्या हम इतने ऑटोज़ जो रोड पे चलते हैं उनको धीरे धीरे बिजली वाले ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं? क्या हम ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं? तो ये हमारा एक आइडिया था। दूसरा, जब हम ड्राइवर्स को देखते हैं, हमने ये भी एनालिसिस किया है कि जो एक ड्राइवर
जितने पैसे वो एक पेट्रोल की गाड़ी चला के या डीजल की या सीएनजी गाड़ी चला के कमाता है, अगर हम उनको उसकी बजाय एक ईवी थ्री व्हीलर दे देते हैं तो उसकी कमाई बहुत बढ़ जाती है। उसकी कमाई बहुत बढ़ जाती है। वो महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा सकता है जितना वो अभी कमा रहा है। तो ड्राइवर्स को थोड़ा एम्पावर करना, उनकी इनकम बढ़ानी, पोल्यूशन कम करना, ये सारे हमारे पास आइडियाज थे। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड मेकिंग इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स। वी स्टार्टेड दिस जनवरी 6 years back, and now we are very proud in saying that we have close to 75,000 electric three wheelers on running on Indian roads as of now, and we have actually contributed in saving lakhs of tons of CO2 emissions. जहाँ तक करियर के सवाल हैं, कुरैशी सर ने भी बताया, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए। आज की डेट में जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी दिखती है, आप प्लीज़ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इकोसिस्टम के सप्लाई चेन में काम करिए। हमारे पास अभी भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी हमारे पास सप्लाई नहीं है, जिसके लिए हम डिपेंडेंट नहीं है, राइट। एक ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। डिज़ाइन और R&D की अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जैसे अब हम जा रहे हैं, जो हम थ्री व्हीलर्स बना रहे हैं उसमें वी आर ऑलरेडी इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, वी आर नॉट इन द असेंबली साइड। हम सब कुछ खुद बनाते हैं, राइट। तो उसके अंदर भी काम करने की ज़रूरत है। दो स्पेसिफिक एरियाज जिसमें मैं सब जो बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करेंगे, उनको मैं सुझाव देना चाहूँगा। प्लीज़ वर्क ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, राइट। बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। हमारी बहुत डिपेंडेंसी है ऑन कंट्रीज़ लाइक चाइना, जो सारी 70% 80% माइनिंग रिफाइनिंग भी कंट्रोल करती है। तो हमने उस चीज़ को इंडिया में डेवलप करना है। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज वी स्केल अप द नंबर्स फॉर आवर कंट्री। एक वो है। दूसरा, पिछले कुछ हफ्तों से जो हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें बहुत एक एंग्जाइटी हुई है, बिकॉज ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जो हम नहीं बना पा रहे, और सर ने भी बात हाईलाइट करी थी, इसके ऊपर भी हमने काम करना है। इसकी डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर है। सो choosing these two specific areas for all the students, I think if you guys start thinking about that, if you start taking mini steps in understanding the importance of these critical products for EVs, so my request is please you can choose these as your career, and I can assure you that there are extremely good opportunities available in future. Thank you, sir. And just to summarize, I think there are plenty opportunities if you want to go into manufacturing, if you want to go into research and development or design. My request from all of you would be, if any of you would like to even simplify this further for the students, because we have class 10 and 12 students, what kind of subjects should they start studying now? And what kind of engineering can they pursue going forward? So any reflections from any of you on that? And then I'll pass it to students for their questions. सो मैम, अगर सेल केमिस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, सो 11th 12th में अगर जैसे बच्चे साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं, then they can pursue engineering like chemical engineering, right, where they can work on these advanced chemistries. On the other side, which is the magnet side, so I think opting electrical engineering will be an excellent field right after they complete 12th. And obviously, since the entire industry is still fallen under the automobile industry, so if they want to pursue careers in manufacturing or production, so obviously automobile engineering is also one of a good option. Thank you, sir. And how about non-science background students? What kind of subjects should they be taking? I think some of us are working on policies, some of us are working on marketing sides. So any insights from any of you? Volunteers, please welcome and respond. So I think, Chetna, the best part of this entire segment and this industry is that abhi there are so many areas and potential opportunities that जो हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि हमें 12th के बाद इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। सो अब जिस आई वुड से स्टेज पे हम हैं, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट फ्रंट्स इन विच students can choose their higher education. For example, आज की डेट में we all know that cars are connected. Like sir said in the previous session also, there's so much data that data itself is the next oil, everybody says, because data insights, and we can do so much with analytics and all.
So that is a very very growing field. Then when it comes to like when we are talking about segment, so ecosystem की जब हम बात करते हैं तो ecosystem सिर्फ कार या सिर्फ प्रोडक्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर नहीं है. ecosystem उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे मैंने बोला जब EVs आती हैं तो EVs को आगे चल के ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट, बट उसके रिपेयर्स या फिर उसको उसका नेटवर्क डेवलपमेंट, आज की डेट में इंडिया इज़ सच अ वास्ट जोग्राफी. अगर आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली ईवी को लेके जाना चाहते हो अपनी प्राइमरी कार, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देश के हर कोने में आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. आपकी कार या कोई भी व्हीकल कहीं ख़राब होता है तो आपको स्किल्ड टेक्नीशियंस मिलेंगे जो आपकी कार को रिपेयर कर सकें. आप कहीं स्टक नहीं होंगे, क्योंकि ये भी मिथ्स हैं जो दिमाग में आते हैं कि वाई हमें ईवीज़ नहीं लेनी चाहिए. सो उस एंगल से देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. मार्केटिंग फील्ड की अगर हम बात करें, मार्केटिंग फील्ड में एक नई कैटेगरी को इस्टेब्लिश करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. सो उस एरिया में, एजुकेशन के एरिया में देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. सो आई थिंक देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉन engineering areas as well when it comes to EV. Thank you, Neha. I think anything else anyone wants to add? I just want to add that you are not bounded by any particular subject or field. If you really want to create an impact and work in EV, there will be ample opportunities, as Neha has pointed out, in every field, whether it be marketing, service, or engineering. So the field is open for everyone right now. Thank you. I think just one thing that I wanted to add is be the climate ambassadors. You don't just need to go and study the subjects that we've been discussing. Sustainability is very broad. We need to save planet. So I think go do whatever you can to make the planet better and to make the future better. So I think with this, now comes the best part. I want to open the floor for questions. So अगर आप सब में से किसी के पास कोई सवाल है हमारे स्पीकर्स के लिए तो अपना हाथ रेज करिएगा. मेरे कलीग्स यहाँ पे हैं, वो आप तक माइक पहुँचाएंगे. यस मैम. थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मेरे को पूछना है कि जैसे इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो पानी पे सर्वाइव कर सकती हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे रोड्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो मॉनसून में गड्ढों में पानी भर जाता है, तो इलेक्ट्रिक कार्स सर्वाइव कर सकती हैं. Sridhar sir, would you like to take that question? Although I'm from two-wheeler industry, I think Neha will be a better person to say. I think, But yes. I'll just say on a two-wheeler point of view, see, when we make batteries, these are certified from the government of India, which are IP67 rated. So these are water resistant to a certain extent, and there is so battery के लिए अभी like for your computer how you have a CPU, there's something called BMS, which is battery management system, which analyzes कि battery के साथ कुछ दिक्कत हो रहा है, like is there a puncture in the battery or is there a ingress of water or anything in the battery, तो accordingly it switch off the battery function ताकि आपको मतलब if there is any damage or anything that could happen to the battery is controlled and it's it's stabilized. Thank you so much. you, Do you want to add anything? No, I think from a primary perspective, the points are well covered. So electric vehicle batteries, be it 2-wheeler, 3-wheeler, in fact 4-wheeler also, they all go through rigorous testings and certifications to be able to be safe and operable. So एक एवरेज 4-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की मैं बात करूँ तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, मिनिमम 8-10 साल, इनफैक्ट उससे भी लंबी होती है अगर हम एक लाइफ साइकिल की बात करते हैं. तो जब बैटरीज मैन्युफैक्चर भी होती हैं तो काफ़ी टेस्ट और टेस्टिंग के थ्रू IP67 जैसे रेटिंग है, इन सब सर्टिफिकेशंस के थ्रू बैटरी अप्रूव होने के बाद ही किसी व्हीकल के अंदर लगाई जाती है. और अनलेस एंड अनटिल एक बहुत ही अननेचुरल सर्कमस्टेंस है, फॉर एग्जांपल जिसमें कोई भी व्हीकल इफेक्ट हो सकता है, देन ऑब्वियसली ईवी भी एज अ व्हीकल उसमें इम्पैक्ट हो सकता है. बट लाइक अगर नॉर्मल ऑपरेशंस में, जैसे हम एक डेली ट्रैवल की बात कर रहे हैं, डेली कम्यूट की बात कर रहे हैं, अगर इवन कोई थोड़ा भी उसमें ऑपरेशंस हो तो ईवी बैटरीज ऐसे ही नॉर्मली बिहेव करती है जैसे एक नॉर्मल आइस व्हीकल. Thank you, Neha. Great question. Thank you for that. Any more questions? I think we have one there. Good morning, esteemed guests. My name is Aranda Parida, and I am a software engineer. I have started learning programming by myself since COVID times, and I have come a great way. But in my future,
I also want to contribute to the EV industry and zero pollution mobility as well. I want to know what a software engineer can do in this industry. Please go ahead. So I think like Neha also mentioned, so जो electric गाड़ियाँ हैं, see these are all connected vehicles. When we say connected, so these are connected internally. So इनके जो components हैं, batteries हैं, power trains हैं, controllers हैं, chargers हैं, ये connected हैं, ये आपस में बात करते हैं. इनके ऊपर एक handshake हुआ होता है. किसी कैन उसको बोलते हैं, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के थ्रू हैंडशेक होता है. बैटरी ने कितनी पावर देनी है मोटर को, जब ज़्यादा स्पीड पे चलेगी तो पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, कम स्पीड पे चलेगी कम रहेगी, तो एक हैंडशेक होता है. तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. दूसरा क्या है, ये जो सारी गाड़ियां हैं ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, राइट. जैसे मैंने गाड़ी की बैटरी की हेल्थ पता करनी है, बैटरी का SOH कितना है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स लिखते हैं. मैंने ये देखना है गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे है, मैंने ये देखना है गाड़ी की जो स्टेट ऑफ चार्ज का है, गाड़ी कितनी चार्ज हुई है, राइट. सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के अंदर. इसके जो अगला फील्ड आ रहा और एडवांस्ड फील्ड आ रहा, आप देखते होगे जैसे USA के अंदर टेस्ला की गाड़ी है या कुछ और गाड़ियां हैं विच आर ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो ड्राइवर्स के बिना भी चल रही हैं. This is all possible because we should have ability to write softwares to make all these vehicles autonomous, बिना ड्राइवर के चले, ताकि हम कल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करें भी हमारे लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाओ, हमारे लिए रेगुलेशंस बनाओ, ताकि हम बिना ड्राइवर के गाड़ी चलें. इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जो लोग राइड कर रहे हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस मिलता है. तो देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन EV इंडस्ट्री. Thank you, sir. Thank you for the great question. Any more questions? Yes. Yeah. Good morning, everyone. There, Thanks for the opportunity, ma'am. My doubt is that in the past, many scooters, or like Ola scooters or other brand scooters, got blasted due to the batteries problems or some other glitches. Also, there are many myths that overnight charging can cause battery health down or making them to bust. So, what steps and measures are taking in this time to stop this? please go ahead, sir. Yeah. In fact, I was expecting this question to come on this forum, right? So this is I mean, it's a fact that we have seen a couple of such cases, right? I would like to divide it in like two things. One, whatever we get from, there are some companies which are called CKD, मतलब complete knockdown, जो बाहर से आते हैं. We assemble it here and sell with, so the quality is very important for the battery. And second thing, like I said earlier, इसका जो certification है, now after a couple of incidents, government has made it more stringent to check the battery, to give the battery approvals and certifications. So with BMS controlling the battery, आपको जो भी heat variations है, and when you charge the battery, you know, like how fast are you charging it or how slow it's discharging. Based on that, the BMS is able to control and give a good stabilization to the battery. And there are new technologies that is coming in. Like in our company, we are using one of the battery called liquid cool battery. That is like, even if you fast charge, these batteries are immersed in a liquid wherein even if you fast charge, the batteries doesn't get heated up and doesn't discharge. When it discharge also doesn't get heated up so quickly, and the balance is maintained. And overnight charging के हिसाब से, I think most of the OEM and all the players have come up with this technology. अगर see, electric vehicles are just like your mobile phones, you know, very comparative to mobile phones. Even in software industry, one of them were asking, right? So how AI is connected, like in mobile phones now, even the artificial intelligence kind of has come into electric vehicles also. That is, आपका mobile आप, if you are charging it overnight, once it gets 100%, the recent mobiles, the charging gets disconnected, right? Similar to that, even in cars, two-wheelers and three-wheelers, when batteries are getting charged and when it goes to 100% charge, the power supply to the battery is cut off. The chargers have become smart, and I think we are able to control it in a good way now. Thank you, Sridhar. Good morning, sir. Yeah, I'm from the second floor. please Yes, go sir. ahead. Yeah.
Thank you so much for giving such information and correlated it with student initially, because students are the young ones who can initiate, who can think about this. My question is partially Sridhar sir already answered, but the thing is, what is the battery cost, battery life? Because as we have heard that initially in petrol or diesel vehicles, we add the cost value of petrol. But especially in battery vehicles, battery life is like in mobile batteries, battery life is not too much. It is usually in 3-4 years we have to change the batteries, or just battery issues have started coming up. That's why we have to change our phones. So in similar, in 3-wheelers and 4-wheelers or in 2-wheelers, how long the battery will run? And especially in 3-wheelers, we often see that the speed limit is also, they go very slowly. That's Yeah. why this question is asked. थैंक यू फॉर दैट. आई आप सबका छुट्टी का भी टाइम हो रहा है, तो इसीलिए जस्ट वन लास्ट मिनट फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्स, एंड देन वील रैप इट अप एंड आई विल पास इट बैक टू माय कलीग. सो whoever would like to take that question. अच्छा मैम, जो बैटरी लाइफ होती है, जो हम अभी केमिस्ट्रीज यूज़ करते हैं ना, ये दो तरह की केमिस्ट्री है. इनको लिथियम आयन बैटरीज बोलते हैं, जिसमें एक LFP केमिस्ट्री है, जिसमें आयरन है और फॉस्फेट है, लिथियम है, और दूसरा NMC केमिस्ट्री होती है, जिसमें निकल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है. टिपिकली इन बैटरीज की जो लाइफ है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से उनको चलाइए, दैट इज़ बिटवीन 4 to 5 years. उसके बाद इस बैटरी को चेंज करना पड़ता है. हम 3 साल की वारंटी देते हैं, बट उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड साइकिल लाइफ है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 साइकिल होती है. तो आप अगर एक साइकिल भी चार्जिंग रिचार्जिंग का रोज करते हैं, राइट, और अगर आप 5 साल में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 साइकिल हो जाते हैं. तो इनकी लाइफ अराउंड मैक्सिमम 5 साल के आसपास होती है. बट अगर आपने लाइफ की एंग्जाइटी को दूर करना है, या इस एंग्जाइटी को दूर करना है भी मैं 5 साल बाद, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बैटरी की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी की 40% कॉस्ट है, तो क्या मुझे वो दोबारा खर्चा करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास स्वैपिंग बैटरीज भी हैं. मतलब उसके लिए आपकी जो गाड़ी है, आप जैसे 3-wheeler लेते हैं, सो द बैटरी इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, इट इज डीकपल्ड, राइट. सो आप बैटरी लोगे, गाड़ी लोगे, बैटरी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट यू कैन स्वैप दोज बैटरीज. अभी हमने एक गाड़ी लॉन्च करी है, आप देखेंगे जो हमारा एक व्हीकल अभी डिस्प्ले पे भी है, वो स्वैपिंग के ऊपर है. हमारे दिल्ली में उस तरह के 400 स्वैपिंग स्टेशंस हैं. आपने कुछ नहीं करना, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आपने स्वैपिंग स्टेशन पे आके अपनी बैटरी को चेंज कर लेना है. तो उससे क्या होगा, आपकी जो एंग्जाइटी है, अभी मेरी बैटरी 5 साल बाद चेंज करनी पड़े, वो एक तो दूर हो जाती है. दूसरा क्या है, जो बैटरी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, भी बैटरी का सेल खराब हो गया या बैटरी के अंदर कोई सर्विस के इश्यूज आए, वो भी आपको इश्यूज नहीं आते, राइट. तो टिपिकली दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन. लाइफ इज अराउंड 5 years, and to get rid of that anxiety, we have swappable batteries available now. Thank you, sir. Thank you to all our speakers, and I'll pass it back to my colleague Trouble. Thank you so much. May I request Sudhendu sir to please join us on stage to hand over certificates of recognition to our industry partners. First, I'd like to invite Sridhar Hiremath from Bounce Infinity. Next, may I request the representative from Euler Motors, Mr. Gattani. From JSW MG Motors India, may I request Ms. Neha Jain to collect the certificates and stuff. May I request the representative from Mahindra & Mahindra Limited to join us on stage and collect the certificate of recognition. Mahindra & Mahindra Limited. Next, may we request the representative from Omega Seki Mobility. And finally, may I request the representative from TVS Motor Company to join us on stage. I think the representative is outside for the demonstration. We will hand these
a bit later. Thank you all for your continued support in driving India's EV revolution with Shunya. May I request Sudendu sir to deliver his closing remarks. So thanks a lot. Thanks to each one of you for being with us. And as I said, we have decided that we will take this with the help of KV Sangathan and KV authorities. इस चीज़ को हम लोग केंद्रीय विद्यालय के और स्कूल में ले जाएंगे और प्लान करेंगे कि दिल्ली के कवर करने के बाद क्या किया जा सकता है कि इसको पूरे देश में जो है वो हम ले करके जा सकें, क्योंकि आप ही में से तो कोई अगला एलन मस्क बनेगा और कौन बनेगा, तो उसकी तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। थैंक यू। सांसों में चलती अब साफ हवा होगी, नए जमाने की नई रफ्तार होगी, प्रश्नों के हल होंगे, सपने सफल होंगे। एक बात तो है पक्की के शून्य में है शक्ति, एक बात तो है पक्की के शून्य से तरक्की, एक बात तो है पक्की के शून्य में है शक्ति, एक बात तो है पक्की के शून्य से तरक्की। छूटेंगी पीछे बातें पुरानी, नया भारत लिखेगा नई कहानी, इरादे अटल होंगे, मेहनत के मीठे फल होंगे। एक बात तो है पक्की के शून्य में है शक्ति।